ہمیں اللہ نے کیا دیا ہے میرے بھائی؟ کیا میں 10 لاکھ روپے آپ کو دے دوں گا، 10 لاکھ روپے دے دوں گا آپ کو، جو اللہ نے جو آنکھیں عطا کیا ہے، کیا مجھے دے دو گے؟ آپ بتاؤ کہ مجھے دے دو گے؟ دینے کے بعد ہمیشہ کے لیے اندھا ہو جاؤ گے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو سوچنے کی صلاحیت دیا ہے یہ بہترین صلاحیت نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کا بہترین عمل، بہترین اللہ تعالیٰ کی نعمت نہیں؟ کیا ہمارے باپ دادا کا زمین جائیداد بیچ کر کے اپنے دل کو خرید سکتے ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہنگی اور اتنی پیاری جو ہے چیز عطا کیا ہے جو جس کا ہم شکر ادا نہیں کرتے؟ یاد رکھنا میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت فضل اور کرم ہے۔ ہم اس بات کو کہنے سے پہلے ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیا یہ جو زمین ہے یہ میں نے بچھایا ہے یا اللہ نے بچھایا ہے؟ میرے بھائی، یہ جو ہم اس زمین پر چلتے ہیں وہ بھی اللہ نے بچھایا ہے ہمارے لیے۔ ہم آسمان کے نیچے رہتے ہیں وہ بھی اللہ کا ہے۔ ہم جو ہوا آکسیجن لیتے ہیں وہ بھی اللہ کا ہے۔ ہم جس آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ بھی اللہ کا ہے۔ ہم جس کانوں سے سنتے ہیں وہ بھی اللہ کا ہے۔ ہم جس دانتوں کا استعمال کرتے ہیں وہ بھی اللہ کا ہے۔ ہر چیز اللہ کا ہے، ہمیں دیا ہے ہر چیز اللہ کا ہے۔ ہم کہتے ہیں اسی اللہ کے حکم کو ہم انکار کرتے ہیں۔ بھلا ہم اللہ کی اس دنیا سے نکل سکتے ہیں؟ بھلا ہم اللہ کی نعمت کو چھوڑ کر کے کچھ کر سکتے ہیں؟ ہم بہت ہی مزہ ہوگا کیا جب وہ اپنے اور کو دیکھیں اور ایسا بھی وقت ہوگا کہ ہمارے کیا وہی وقت ہوگا؟ میں بات کروں جنت اللہ نے چاہا تو جنت عطا کرے گا، اور جنت میں جو ہے کوئی بھی انسان جو جنت میں گیا ہوگا جنت عطا کرے گا، اس جنت میں ہماری اپنی خوشی نہیں، کتنا خوشی کا موقع، کتنا خوشی کا دن ہوگا، اور وہ اپنے کبھی نہیں بچھڑیں گے۔ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشخبری دیا ہے کہ جنت میں تمہارے سارے کھویا ہوا ہمارے محبت کرنے والے لوگوں کو ہم نے کتنا گوایا ہے، کتنا کھویا ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کوئی رہنے نہیں آیا ہے، سب ایک دن جانے والے ہیں، اور یہ دنیا بھی ایک دن فنا ہونے والا ہے، اور آخرت کی زندگی ہونے والی ہے ہمارے سامنے۔ میرے بھائیوں، کیا ہوگا جب انسان جنت میں رہے گا؟ سارے اپنے ہمارے ساتھ رہیں گے، ہمارے بچے، بھائی بہن، رشتے دار اور نہ جانے کتنے لوگ ہمارے ساتھ رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی عطا کرے گا جو کبھی نہیں آئے گا، اور ایسی خوبصورتی عطا کرے گا، ایسی جوانی عطا کرے گا، ایسا صحت عطا کرے گا جو کبھی بیمار نہیں ہوگا، ایسا مالدار ہمیں اللہ تعالیٰ بنائے گا، ایسا غنی ہمیں اللہ تعالیٰ بنائے گا جو کبھی بھی ہمارا مال خرچ نہیں ہوگا۔ ہمارے جو بیوی اور بچے ہیں وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ میں رہیں گے۔ کیا ہی زندگی ہوگا جو زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ کی بڑی اور اتنا بڑا فضل اور کرم ہے ہم پر جو ہمیں ایمان والا بنایا ہے۔ ایک ایمان والا آسمان سے قیمتی ہے، اللہ نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا ہے۔ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ ہماری بہتری نہیں کرتا، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت فضل اور کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنے احسانات کیے ہیں۔ دنیا کے کونے سے لے کے دنیا کے
अल्लाह ताला का नेमत है, हम तो अल्लाह की नेमतों पे बने हैं। अल्लाह ताला का जितनी भी नेमत है, हम अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर सकते। और फिर हम कहते हैं कि हमारे पास नमाज का टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। मेरे भाइयों और मेरे बहनों और मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे बात को सुनो गौर से। हम इस बात को कहने से पहले हमें और फिक्र करने की ज़रूरत है। क्या ये जो ज़मीन है ये मैंने बिछाया है, अल्लाह ने बिछाया है? मेरे भाई, ये जो हम जिस ज़मीन पर चलते हैं वो भी अल्लाह ने बिछाया है हमारे लिए। हम आसमान के नीचे रहते हैं, वो भी अल्लाह का है। हम जो हवा ऑक्सीजन लेते हैं वो भी अल्लाह का है। हम जिस आँखों से देखते हैं वो भी अल्लाह का है। हम जिस कानों से सुनते हैं वो भी अल्लाह का है। हम जिस दांतों का इस्तेमाल करते हैं वो भी अल्लाह का है। हर चीज़ अल्लाह का है। हमें दिया है, हर चीज़ अल्लाह का है। फिर हम कहते हैं उसी अल्लाह के हुक्म को हम इनकार करते हैं। भला हम अल्लाह के इस दुनिया से निकल सकते हैं? भला हम अल्लाह की नेमत को छोड़ करके कुछ कर सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि हमें अल्लाह की नेमत को छोड़ना नहीं कह सकते। इस बात को और फिक्र करने की ज़रूरत है कि हम कौन से बादशाह को कह रहे हैं, कौन से बादशाह के बारे में कह रहे हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। हम काम करते हुए नमाज को जाया कर देते हैं, हम उठते हुए नमाज को जाया कर देते हैं, हम टहलते हुए नमाज को जाया कर देते हैं, हम शादी ब्याहों के मौके पर नमाज को तर्क कर देते हैं, हम सफ़र में नमाज को तर्क कर देते हैं। भला नमाज को हमने बिल्कुल भी सीरियस नहीं किया। और इतना सीरियस होने की जरूरत। इमाम हुसैन को कौन नहीं जानते? जानते हो इमाम हुसैन कौन था? इमाम हुसैन ने जो करबला के मैदान में सर को कटाया, उन्होंने फिर भी जुल्म के जालिम के आगे सर को नहीं झुकाया। उन्होंने ये पैगाम दिया कि सजदा किसी भी हाल में नहीं छोड़ना। ऐसे मौके पर उन्होंने सजदा करके दिखाया। चारों ओर से लोग कत्लेआम हो रहे हैं। किसी का गर्दन कटे जा रहा है, किसी का हाथ कटे जा रहा है, किसी का पैर कटे जा रहा है। ऐसे मौके पर भी उन्होंने क्या फरमाया कि उनसे कहो जा करके कि नमाज का वक्त हो गया है, हमें नमाज अदा करना है। और वो खबर देते हैं कि उन्हें हम नमाज पढ़ने का टाइम नहीं देंगे, हम जंग को नहीं रोकेंगे। और ऐसे मौके पर भी उन्होंने क्या फरमाया कि आधे जा करके जंग करो और आधे नमाज पढ़ो। आधे लोगों ने उनके साथ जंग किया और आधे लोगों ने नमाज अदा किया। कि जब इनका नमाज मुकम्मल हुआ, इन्होंने जाके जिहाद किया, जंग किया और उन्होंने जाके नमाज अदा किया। ऐसे मौके पर भी उन्होंने नमाज को नहीं छोड़ा, नमाज को अदा करके दिखला दिया। नमाज एक कितनी बड़ी अल्लाह ताला का हुक्म है, इसको हम भी हमारी ज़िंदगी में हम दाखिल नहीं करना चाहते हैं, जो हमें दिन में 5 मरतबा अदा करना है। अल्लाह ताला का हुक्म है। मेरे भाइयों, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कहते चले गए, मेरी उम्मत नमाज को ना छोड़ना, नमाज को ना छोड़ना। और आज हमारी ज़िंदगी में नमाज का कोई हिस्सा नहीं। बहुत ही अफसोस की बात है कि हमने अल्लाह ताला के हुक्म को हम भूले हुए हैं। हमने अल्लाह ताला की मोहब्बत को जो है ठुकरा दिया है। अल्लाह की मोहब्बत को हमने नहीं देखा है। मेरे भाइयों, हमें अल्लाह की मोहब्बत को देखने की ज़रूरत है। हम कहते हैं कि हमें अल्लाह ने क्या दिया है, हमें अल्लाह ने क्या दिया है। मेरे भाई, क्या मैं 10 लाख रुपए आपको दे दूँगा, 10-20 लाख रुपए दे दूँगा आपको, जो अल्लाह ने जो आंखें अता किया है, क्या मुझे दे दोगे? आप बताओ, क्या मुझे दे दोगे? देने के बाद हमेशा के लिए अंधा हो जाओगे? नहीं होंगे। क्या अल्लाह ताला ने हमें जो सोचने की सलाहियत दिया है, ये बेहतरीन सलाहियत नहीं है? क्या अल्लाह ताला का बेहतरीन अल्लाह ताला की नेमत नहीं है? क्या हमारे बाप दादा का ज़मीन जायदाद बेच करके हम दिल को खरीद सकते हैं? क्या हम दिल को खरीद सकते हैं? अल्लाह ताला ने हमें इतनी महंगी और इतनी प्यारी जो है चीज़ अता किया है, जो जिसका हम शुक्र अदा नहीं करते। याद रखना मेरे भाइयों, अल्लाह ताला का हम पर बहुत फजल और करम है और अल्लाह ताला हमें कभी नहीं छोड़ेगा। अगर हम कह रहे हैं कि हमें नमाज का वक्त नहीं मिल रहा है, हमारे पास नमाज का टाइम नहीं है, जब टाइम मिलेगा जब
क्या नमाज ऐसी चीज़ है कि जब टाइम मिलेगा जब पढ़ लेंगे? क्या अल्लाह ताला का हुक्म ऐसी चीज़ है कि जब टाइम मिलेगा जब पढ़ लेंगे? नहीं भाइयों, हमें सीरियस लेने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला का हुक्म बहुत ही मेरे भाइयों, हमें सीरियस लेने की ज़रूरत है। इस वीडियो को सदका जारिया समझ कर शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें भाइयों, ताकि दीन की बातों को मैं अपने भाइयों तक, बहनों